Welcome to VLearn. This is session 12 of technology transfer. So in today's session, we are going to discuss about the technology transfer and sustainability. Under this topic, first of all, we are going to cover theoretical foundation. After that, we are going to discuss about the success of technology transfer. Then we are going to cover cultural factors. Then we are going to discuss about the environmental factors. Then geographical location factors. After that, we are going to discuss about the research questions and hypothesis. Then we will discuss about research design. Then the next topic will be samples and data analysis. After that, we are going to discuss about the findings, and at last in this session we are going to discuss about the multiple regression of the data. So first of all, let us start today's session with the topic, that is theoretical foundation. So basically here we are going to discuss the foundation rules and the foundation criteria for the technology transfer. So basically technology transfer was a multidisciplinary area of research in the 1970s. 1970s में इसको multidisciplinary area treat किया जाता था because it has many areas in which it plays a very important role. Like international technology transfer emerged as a separate field of inquiry as a consequence of the accelerating awareness of the economic interdependence of nations and of the central role of technology in international relations. यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो एक डिफरेंट फील्ड के तरीके से इमर्ज हुआ. यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे वो यहाँ पर यूज़ किए जाते थे किसी भी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, इंटरडिपेंडेंसी को शो करने के लिए बिटवीन दी डिफरेंट नेशंस. Now looking at the remote environment, government stability, economic volatility, socio-cultural respectivity and technological capability of the host nation influences the mode of technology transfer. अब हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते थे जिनकी हेल्प से जिसका कि मेन इम्पैक्ट होता था हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं. लाइक रिमोट एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्ट करती है उसके रूल्स, रेगुलेशंस, बिहेवियर, पॉलिसीज़, इन सभी पर काफ़ी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है. क्योंकि सपोज़ अगर हम पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस को फॉलो करती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है. Then other factors can be economic volatility, socio-cultural receptivity and technological capability. कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट हो सकते हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. सो बेसिकली अ सिंपल प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग द टेक्नोलॉजी becomes a more complex operation of establishing a wholly owned subsidiary within another country. यहाँ पर ये जो सिंपल प्रोसेस लगता है कोई भी जो हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टेक्निक है इसको बेसिकली अगर हम ओवरऑल एक्सटर्नली देखें तो एक सिंपल प्रोसेस लगता है, बट इट इज़ नॉट दैट मच सिंपल. ये इतना सिंपल नहीं होता. इसमें डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, बिहेवियर होता है. सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हेयर, दैट इज़ सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. So basically measuring the success of technology transfer could be approached from a variety of ways according to previous research. अगर हमें किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को एक सक्सेस में कन्वर्ट करना है, हमें यहाँ पर डिफरेंट आउटपुट्स अचीव करने हैं, गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, वेराइटीज़ हैं, मेथड्स हैं. Among them the simplest measurement was the ability of the recipient firm to operate the टेक्नोलॉजी. यहाँ पर जो सबसे सिंपल मेथड है, मेजरमेंट है, वो हम कह सकते हैं कि जो रेसिपिएंट फर्म है वो यहाँ पर अगर उसी टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करे, जो उसे यूज़ करनी है, वो खुद ये सारे टास्क परफॉर्म करे, तो ये बेटर होता है इन दी सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. नाउ आफ्टर दिस द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेथड वॉज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू इन्वेंट ए न्यू टेक्नोलॉजी. यहाँ पर जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है
किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी फर्म के लिए, वो ये होता है कि अपने ही बेसिस पर ऑन देयर ओन दे हैव टू क्रिएट अ न्यू टेक्नोलॉजी, दे हैव टू इन्वेंट अ न्यू टेक्नोलॉजी। खुद के बेसिस पर ही किसी न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग हेयर इज़ कल्चरल फैक्टर्स। So cultural barriers were the greatest challenge to the successful transfer of technology. So by analyzing the culture of the host nation, the donor would be able to identify factors to motivate higher efficiency and production from the workforce, thus enhancing the success of technology transfer. अब बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर कल्चरल बैरियर्स होते हैं वो काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टेक्निक को सक्सेसफुल बनाने के लिए। यहाँ पर एक तरीके से बैरियर का वर्क करते हैं जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। सो हेयर वी कैन एनालाइज द कल्चर ऑफ द होस्ट नेशन, हमें यहाँ पर उसको एनालाइज करना होता है। देन वी हैव टू परफॉर्म वेरियस अदर फैक्टर्स, वेरियस अदर टास्क लाइक टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स टू मोटिवेट हायर एफिशिएंसी। ऐसे फैक्टर्स हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं जिसकी हेल्प से हम एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकें, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। देन कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग द सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंट्री में जो कल्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सबसे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए। Now, tradition, religion, historical habits, and personal aspirations for a new life were important factors facing technology digestion and absorption. किसी भी न्यू प्रोसेस के लिए, न्यू टास्क को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर ट्रेडिशन या रिलीजन, हिस्टोरिकल हैबिट्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो बैरियर्स टू ए सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंक्लूड कल्चरल एंड लैंग्वेज गैप्स, low technical and other capabilities in developing countries, inadequate infrastructure in developing countries, and insufficient investment in research and development, particularly relating to technology adaptation. अब किसी भी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कुछ फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पर कुछ बैरियर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, सक्सेसफुल नहीं हो पाती टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टेक्निक। अब यहाँ पर जो वो बैरियर्स हैं वो हो सकते हैं हमारे लैंग्वेज गैप्स, दैट मीन्स जहाँ पर हमें कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस कैरी आउट होना है, अगर उनके बीच में लैंग्वेज डिफरेंट हैं, कम्युनिकेशन गैप है, तो ये हो सकता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सक्सेसफुल ना हो पाए। सिमिलरली अगर टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ की बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो उनकी वजह से भी कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अगर वो सफिशिएंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, देन ऑल्सो वी कैन हैव प्रॉब्लम्स in successful technology transfer. Now let us discuss several other factors here, that is environmental factors. So basically technology transfer requires a certain environment to be of commercial value. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए एक हमें एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो कि एक हमारी कमर्शियल वैल्यू को ऐड करता है, इंक्रीज़ करता है। सो यहाँ पर हमारे पास अगर एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात करें, तो 3 फैक्टर्स मेन होते हैं, like physical, economical and industrial. So local environmental factors were important in conditioning technology transfer. जो local environment होता है, local environmental conditions होती हैं, वो काफ़ी important role play करती हैं technology transfer में. So when technology is transferred to a foreign country, suitable adaptation to the local environment is usually required. अब यहाँ पर जब भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को एक फ़ॉरेन कंट्री से रिलेट करते हैं तो वहाँ पर हमें एक अडेप्टेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक वर्किंग एनवायरनमेंट सेम नहीं होता, तो हमें वर्किंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अडेप्ट होना होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग हेयर इज़ द फिज़िकल एनवायरनमेंट
The physical environment factor can influence the success of the technology transfer from the point of the topography of the country, the climate, the weather, and all of this needs to be considered for technology transfers. अब जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक वेदर की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, या जो भी और नेचुरल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस में. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हेयर, दैट इज़ geographical location factors. So the effects of geographical location on technology transfer can be seen from two different perspectives. अब यहाँ पर जो इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन के किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस पर, उनको हम डिफरेंट वेज से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. लाइक फर्स्ट वन हेयर इज़, इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज और न्यू मटेरियल्स नीडेड टू प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स through the application of the new technology do not exist because of the geographic conditions, this will directly affect the applicable technology. लाइक सबसे पहले यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंसीडर करते हैं, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज हैं या न्यू मटेरियल्स हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए. अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं किसी भी जोग्राफिकल कंडीशन में, तो ये डायरेक्टली हमारे टेक्नोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं जो कि हमें यूज़ करनी है या जो हमें टास्क परफॉर्म करना है उसको अफेक्ट करते हैं. नाउ सेकंड थिंग हेयर इज़ द जियोग्राफिकल लोकेशन लैक्स वन और मोर की इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी टू मेक द टेक्नोलॉजी ट्रांसफरेबल. अब हमारी जो कंडीशंस हैं, जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, लोकेशंस हैं, अगर उसमें नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, नेसेसरी इंग्रेडिएंट मीन्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स, ऐसे रॉ मटेरियल्स या ऐसे इक्विपमेंट्स जिनकी हेल्प से हम किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तब भी इसका काफ़ी हाई इम्पैक्ट होता है हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस पर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस पर. नाउ द नेक्स्ट थिंग हेयर इज़ रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस. सो दिस स्टडी एड्रेस्ड द फॉलोइंग रिसर्च क्वेश्चंस. ये जो रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक स्टडी है जिससे कि हमने कुछ क्वेश्चंस ड्राइव किए, कुछ रिलेशंस ड्राइव किए. अमंग देम द फर्स्ट वन इज़, व्हाट आर द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सऊदी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. लाइक किसी भी एक कंपनी का अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें तो हम यहाँ पर किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से ड्राइव करते हैं उसकी फंक्शनिंग को लेकर. यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन अराइज किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. लाइक एग्जांपल लिया यहाँ पर सऊदी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, तो उसकी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करानी है. देन टू व्हाट एक्सटेंट डज सऊदी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टॉप मैनेजमेंट परसीव कल्चर टू बी अ फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू सऊदी अरेबिया. अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज किया कि जो सऊदी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसका जो टॉप मैनेजमेंट है वो वहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं सऊदी अरेबिया की सक्सेस में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के प्रोसेस में. सो हम यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं. सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज़, टू व्हाट एक्सटेंट डज सऊदी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ top management perceive geographical location to be a factor in the success of technology transfer to Saudi Arabia. कि किस हद तक जो सऊदी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका जो टॉप मैनेजमेंट है वो यहाँ पर जियोग्राफिकल लोकेशन को लेकर कितना कंसर्न है या उसका क्या फैक्टर है किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस में इन सऊदी अरेबिया. दैट मीन्स यहाँ पर लोकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और उसका जो रोल है, उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट कराना है. द नेक्स्ट वन हेयर इज़, टू व्हाट एक्सटेंट डू सऊदी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ टॉप मैनेजमेंट परसीव फिजिकल एनवायरनमेंट टू बी अ फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हद तक जो सऊदी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसका जो टॉप मैनेजमेंट है ये मानता है कि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में या सऊदी अरेबिया की
सक्सेस में। नाउ द नेक्स्ट question here is, are there significant relationships among the perceptions of factors and the success of technology transfer to Saudi Arabia? क्या यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में या सऊदी अरेबिया की सक्सेस में? सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड अमंग दीज इंडस्ट्रीज़? अब इन इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो फेस करनी पड़ रही थी उन्हें? नाउ फ्रॉम दीज क्वेश्चंस द फॉलोइंग रिसर्च हाइपोथेसिस वर ड्राइव। अब ये जो हमने क्वेश्चंस आस्क किए यहाँ पर, ये हमारे थे रिसर्च क्वेश्चंस। अब उसी से रिलेटेड हमने कुछ हाइपोथेसिस भी यहाँ पर जनरेट किए हैं। सो हेयर द H1 दैट इज हाइपोथेसिस फर्स्ट इज, देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट्स परसेप्शन ऑफ कल्चर, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफिकल लोकेशन एज बैरियर्स फैक्टर्स टू द सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप दैट मीन सफिशिएंट रिलेशनशिप होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट में और फिजिकल एनवायरनमेंट में और हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इन तीनों का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के सक्सेस के लिए। सिमिलरली द हाइपोथेसिस सेकंड इज, देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट्स परसेप्शंस ऑफ कल्चर एज ए बैरियर फैक्टर टू द सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। दैट मीन्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक रिलेशन जो कि एग्जिस्ट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में और बैरियर फैक्टर्स के बीच में। सिमिलरली द थर्ड हाइपोथेसिस इज, देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट्स परसेप्शंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एज ए बैरियर फैक्टर टू द सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें और फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, तो ये एक बैरियर का वर्क करते हैं, फैक्टर हैं जो कि हैम्पर करते हैं सक्सेस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। नाउ द नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट्स परसेप्शंस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन एज अ बैरियर or you can see the factor to the success of technology transfer। that means टॉप लेवल मैनेजमेंट के परसेप्शन को लेकर जो जियोग्राफिकल लोकेशन को से रिलेटेड व्यू पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हेयर दैट इज रिसर्च डिज़ाइन। सो द फर्स्ट सेक्शन was designed to gather data about the industries demographic characteristics। जो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन होता है किसी भी रिसर्च डिज़ाइन में, वो हम गैदर करते हैं उसके थ्रू डेटा को किसी भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट सेक्शन was a scale measurement of the participating industries, perception of the success of technology transfer, culture, physical environment and geographical location as factors affecting टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। जो सेकंड सेक्शन होता है वो एक तरीके से स्केल का वर्क करता है। इट मेजर्स द पार्टिसिपेटिंग इंडस्ट्रीज़, ये मेजर करता है पार्टिसिपेटिंग इंडस्ट्रीज़ को, उनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की सक्सेस को, कल्चर को, फिजिकल एनवायरनमेंट को और जियोग्राफिकल लोकेशन को। नाउ द थर्ड सेक्शन वाज इंटेंडेड to measure frequency distributions of problems associated with normal operation of the industries and opinion feedback questions। अब यहाँ पर जो थर्ड सेक्शन होता है वो मेजर करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड है और नॉर्मल ऑपरेशंस को शो करता है इंडस्ट्रीज़ के, एंड इट शोज द फीडबैक ऑफ दोज क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हेयर इज सैम्पल्स। So the criteria for selecting the sample were private manufacturing industries, companies manufacturing a product or products made from raw materials, and companies comprised of a workforce of 120 or more persons. A survey was personally delivered to top level management in selected industry offices। अब यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है, हम यहाँ पर एक सैम्पल यूज़ करते हैं प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। सो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, यहाँ पर ऐसी कंपनीज को हम सेलेक्ट करते हैं जो कि रॉ मटेरियल्स को क्रिएट करती हैं और
और जो कि यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल्स का. देन इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ companies which have a workforce of 120 or more persons. Now the next topic here is data analysis. So the data for each statistical hypothesis were analyzed using regression analysis. यहाँ पर जो भी डेटा है किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम एनालाइज करते हैं यूजिंग द रिग्रेशन एनालिसिस. सो द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाज प्रोसेस्ड यूजिंग SPSS वर्जन 9. SPSS वर्जन 9 की हेल्प से हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं यहाँ पर. देन SPSS वाज चूजन बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सली ऑर्गेनाइज, you can say universally recognized computer program for analyzing data. After that, all the variables were analyzed for normality, linearity and homoscedasticity. Then normality was analyzed graphically using a histogram. यहाँ पर हम हिस्टोग्राम की हेल्प से, दैट मीन्स एक हम ग्राफ जनरेट करते हैं, उसकी हेल्प से लीनियरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉर्मेलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं. आफ्टर दैट लीनियरिटी इज़ अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. यहाँ पर जो लीनियरिटी है ये एक रिलेशनशिप शो करता है जिससे कि हम एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं अमंग द टू वेरिएबल्स. Then using bivariate scatter plots between the dependent variable on the y-axis and each of the independent variables on the x-axis, the plots showed that the relationships between the variables were linear. अब यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप क्रिएट कराते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में. यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में हम एक रिलेशनशिप क्रिएट कराते हैं, उन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर. Now let us discuss the next topic here, that is findings. So the first and second parts of the demographic characteristics present industry types as they were categorized from the Saudi Industrial Directory. अब यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स हमने डिस्कस किए डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो रिप्रेजेंट कराते हैं हमारे सऊदी इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी को. देन द वर्कफोर्स नंबर्स रेंज फ्रॉम 130 to 3,500 एम्प्लॉयज़ एंड द मीडियन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वॉज 300. अब यहाँ पर जो वर्क फोर्स थी वो एक रेंज में लाई करती है जो कि है 130 to 3,500, और इस नंबर का जो मीडियन है, जो एम्प्लॉयज़ का मीडियन है वो है 300. सो द परसेंटेज ऑफ सऊदी एम्प्लॉयज़ रेंज फ्रॉम 1 to 36%. द मीडियन परसेंटेज ऑफ सऊदी एम्प्लॉयज़ वाज 9%. इसीलिए हम यहाँ पर एक और रिलेशन हमने यहाँ पर ड्राइव किया कि जो परसेंटेज है सऊदी एम्प्लॉयज़ की वो रेंज में है 1 to 36% के. सिमिलरली अगर मीडियन परसेंटेज की बात करें तो उसकी रेंज है 9%. नाउ 23 ऑफ द 40 इंडस्ट्रीज परसीव्ड अ ग्रेटर एडवांटेज इफ देयर एम्प्लॉयज़ वर सऊदी एंड 17 इंडस्ट्रीज इंडिकेटेड दैट इट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस इफ देयर एम्प्लॉयज़ वर सऊदी और नॉट. यहाँ पर 40 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनके पास काफ़ी एडवांटेज था क्योंकि एम्प्लॉयज़ सऊदी से थे. देन सिमिलरली 17 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो कि जिन पर ये कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था कि एम्प्लॉयज़ कहाँ से बिलोंग करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हेयर, दैट इज़ मल्टीपल रिग्रेशन ऑफ द डेटा. सो द साइमल्टेनियस रिग्रेशन इंडिकेट्स दैट कल्चर, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफिकल लोकेशन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. यहाँ पर हमें पता चलता है इस रिग्रेशन टेक्निक के थ्रू कि जो हमारा कल्चर है, फिजिकल एनवायरनमेंट है या जोग्राफिकल लोकेशन है, वो हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर इफ़ेक्ट डालते हैं. इसके लिए हम एक रिलेशन यूज़ करते हैं. लाइक हमारे पास एक फंक्शन है F336, उसको हमने 20.01 से डिनोट किया. यहाँ पर P से हमने रिप्रेजेंट किया प्रोबेबिलिटी को, एंड इट विल बी लेस देन 0.01. So together the three independent variables accounted for 62.5% of the variance and the adjusted R square equals to 59. अब यहाँ पर हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया. सो वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद हमने एक R स्क्वायर फैक्टर कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू हमें मिली 59. Now at the end of this session here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, what is cultural factor? Then the next question is, what is data analysis?
So this is the end of today's session. Thank you.